explanation of this test, you can ask from me in the chat box. Okay. Third year, here in this picture, there are shown the 4 test tubes. In these test tubes, they are of different colors. Okay. And each test tube, there are certain labels. If you forget about these labels, just see the test tubes. Inside each test tube is a small tube. This one is a small tube. Okay. This test tube, in this test tube, this is the culture media, which is light orange color, pink or red in color maybe. Okay, light orange in color. In this culture media, which is liquid in consistency, here is small tube. This culture media will tell us the fermentation of sugar. Okay, and this small test tube, it will show us the inoculated bacteria whether it will produce the gas or not. Some bacteria, they produce gas. So in this test tube, in this small tube, there will be bubbles. Just like in this, there is a small bubble. It shows that this bacteria is gas producing. Okay, and in this small test tube there is no bubble. It means the bacteria which is inoculated in this culture media, it does not produce the bubble. Okay, actually these are slides which came in the OSPE regarding the previous lecture, growth and nutrition of bacteria. So I feel कि मैं तुम लोगों से ये डिस्कस कर लूं. In this test tube, here is a small test tube, the small tube in which there is no bubble. It means this organism is also not producing the gas. Okay, fine. If you feel any problem, you can ask from me in the chat box. Okay, this is a culture media. It is uninoculated culture media. No organism is present. Okay, here in this test tube, the organism is inoculated and we don't know the organism. We will inoculate the organism in this culture media. We incubate it for 24 hours. After 24 hours, we examine this tube and we will see what are the reactions in this tube. This test tube was also of this color before usage. 1, 2, 3. ये तीनों टेस्ट ट्यूब इस कलर की थी बिफोर द इनोकुलेशन ऑफ बैक्टीरिया. आप ये समझ लो कि इसी ही टेस्ट ट्यूब में हमने एक ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट किया, लेकिन हमें पता नहीं था वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है. ओके, नेक्स्ट डे हमें टेस्ट ट्यूब ऐसी मिली. ये ऐसी से ऐसी क्यों हो गई, इसका कलर चेंज क्यों हो गया? आई होप सो यू ऑल नो वेरी वेल, because this organism which was inoculated in this test tube, it has fermented the sugar. It produced pyruvate and lactase, which causes the media acidic, and the acidic pH will turns the media yellow. Yesterday हमने ये बात की थी. It will turns the media yellow. So it means that the organism which is inoculated in this test tube is a fermenter of sugar. Okay, so this is the causative organism E. coli. लेकिन अभी तुम लोगों को सारे ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शंस नहीं पता, सिर्फ तुम लोगों को रिएक्शन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए. कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तुम लोग जब तक स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी सारी पढ़ लोगे तब तक आएगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ टेस्ट को की इंटरप्रिटेशन तुम लोगों को आनी चाहिए. येलो कलर शोज एसिड इज प्रोडक्शन एंड द पीएच इंडिकेटर विल चेंज द कलर. ओके, मीडिया का कलर भी चेंज हो जाएगा, एंड एज वेल एज दिस ऑर्गेनिज्म इज आल्सो गैस प्रोड्यूसिंग. ओके, here we don't know the name of the organism. Okay, forget about this label. In this test tube inoculated another unknown any sample, and after 24 hours this test tube will change into this test tube, this color. It means that it is also fermenter of sugar. It has its color is yellow after 24 hours. It means the acid is production, and this acid production turns the medium yellow, but this organism is not gas producing. So we can differentiate from this organism from this because due to the gas production. Okay, the next one is this test tube was uninoculated, but it was inoculated, and after 24 hours this color is obtained, the same color as it is uninoculated. But actually in this, it means in this culture media, the organism which was inoculated, it is not fermenter of sugar.
It does not ferment any sugar. So the pH is alkaline, and the alkaline pH will turn the medium reddish in color, pinkish reddish in color. So it means maybe the organism which is inoculated in this tube is aerobe, which are not fermenter of sugar. And yes, it is Pseudomonas aeruginosa. It is a strict aerobe. Okay. This small test tube is called Durman's tube. Okay. This here is a peptone media with phenol red indicator from left to right. उन्होंने वो जो बातें मैंने explain की है वो उन्होंने वही उसमें explain की. ठीक है? I hope so. You all have got it. If any confusion, you can ask from me. Okay. The same test is shown that this is uninoculated tube. Uninoculated tube, इसमें कोई organism हमने inoculate नहीं किया. इसमें सिर्फ test tube में culture media है और कुछ नहीं है. मैं थोड़ा स्पीड अप चलूंगी क्योंकि मुझे अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है. ठीक है 30 स्टूडेंट्स. इसमें हमने एक ऑर्गेनिज्म एक सैंपल को इनोकुलेट किया और आफ्टर 24 आवर्स हमें इसका ये कलर मिला. अब आप लोगों को पता है कि इसमें टिपिकल पॉजिटिव ग्रोथ विद एसिड प्रोडक्शन. एसिड प्रोडक्शन विल टर्न्स द मीडियम येलो. इस वजह से ये टेस्ट ट्यूब येलो कलर की हो गई है. एंड गैस, एंड हियर इज अ बबल. इट विल शोस द प्रेजेंस ऑफ द गैस. And this is a typical negative reaction with growth. Organism है इसमें, लेकिन organism जो है वो fermenter of sugar नहीं है, इसीलिए pH alkaline है, इसीलिए color change नहीं हुआ. Okay, I hope so both slides are clear now. Okay, I show you one slide yesterday in which it was mentioned colony and turbidity. Here I want to show you this type of culture plates you will see in the lab when you will come to the physical classes. You come to lab and you will use the culture medias. This plastic test tube here in this plastic test tube culture media is poured. On this solid culture media, we inoculated an unknown organism. After 24 hours, we find out this growth. The yellow color is that the organism, the bacteria has grown. It is a live culture. Okay, and if we focus this focus this petri dish, this is one circle means one colony. And I told you one colony shows multiple and multiple cell divisions of bacteria. Many bacteria are present in this, which is हमें नजर तो वन कॉलोनी एक डॉट नजर आ रहा है, एक्चुअली वो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो ग्रो करके एक कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, ये कॉलोनी प्योर भी हो सकती है, ये कॉलोनी मिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स की भी हो सकती है. हमेशा हम प्योर कॉलोनी को आगे मतलब उसको डायग्नोस करते हैं. ठीक है, तो ये शो करा रही है कि ये कॉलोनी है और ये 4 mm की है. ओके, आई होप सो इट इज क्लियर. दिस इज I want to show the turbidity in this slide. This is the sterile uninoculated broth. Broth is also a type of culture media. Okay, it is clear. You can see that it is clear. If we inoculate any organism in it and we mix it very well, then the broth shows slight turbidity. Now it is becomes little bit hazy, milkish जो है वो हो गया, opaque सा हो गया है. Slight turbidity. It means some bacterial growth. Okay, and this is also shown the turbidity. It is very clear. And look at this test tube. It is turbid. Turbidity is also shown also like this. If we shake it, the organism will be mixed in whole of the test tube, which are now in the form of sediment. It will mix in whole of the test tube. Okay, in the नो इट इज नॉट बिहेवियर साइंसेस का लेक्चर. बच्चों कल जो टाइम टेबल अपडेटेड टाइम टेबल कल मुझे रिसीव हुआ उसमें ये पैथोलॉजी का लेक्चर था. आई डोंट नो कि आप लोगों के पास वो टाइम टेबल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन आई कि मेरा आज 9 to 10 पैथोलॉजी का लेक्चर है. सो आई एम हियर. ओके, now you have to spend the time of a whole 1 hour with me. Okay, now we will
एक्चुअली बच्चों मैं मरियम ने ज़रूर कहा होगा, लेकिन डे बाय डे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अब रमज़ान का मंथ शुरू हो गया, तो मे बी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फील हुआ हो कि नहीं टाइम टेबल ठीक नहीं है, इसको चेंज करना है या कोई प्रॉब्लम हो। आई डोंट नो बिहाइंड द रीज़न, बट मेरे पास कल ऑफ टाइमिंग्स में जो अपडेटेड टाइम टेबल आया उसमें बच्चों मेरा लेक्चर था, बिहेवियर साइंसेस का लेक्चर नहीं है। ओके, नाउ इट इज क्लियर, वी विल मूव, आई विल मूव टू माय नेक्स्ट स्लाइड। Okay, today we will start the topic, new topic, which is mentioned in your book as the genetics या mutation. ठीक है, mutation या genetics. Okay, this is just a saying. If we did not have genetic mutation, it is showing the importance of the mutation. We would not have us. You need error to open the door to the adjacent. Okay, in the first 2 years in the biochemistry, in the first 2 years in the biochemistry, you have studied the protein synthesis very well, the ribosomes, the protein synthesis, the ribosomes and the protein synthesis. So I hope so you are very well aware of the codon, the terminal codons, stop codons, amino acids, protein synthesis, and this whole protein synthesis pathway. If you feel any problem before studying the genetics chapter, please just give us brief review from your chemistry topics. Okay, there are different type of mutations. There is some problem in the slide sharing. It will come. Just listen to me. There are different type of the mutations. The most common mutations are the base substitution. There are three important mutation types of mutations: base substitution, frame shift mutation, and programmed rearrangements. Or we can say that the transposons are the insertion sequences. These three type of mutations are very important. In these three types, first we will discuss the base substitution. What will happen in the base substitution? As the name shows, one base genetic material में जो bases होती है ना उनकी बात कर रहे हैं हम. One base is replaced with another base. एक बेस की एक जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम्स के अंदर एक बेस पेयर की जगह एक डिफरेंट बेस पेयर आ जाएगा, एक डिफरेंट बेस आ जाएगी. इट मींस वी कैन से दैट द बेस इज रिप्लेस्ड विद अनदर बेस. ओके, दिस इज कॉल्ड बेस सब्स्टिट्यूशन और पॉइंट म्यूटेशन. इस बेस सब्स्टिट्यूशन का आउटकम क्या होता है? इस बेस सब्स्टिट्यूशन के आउटकम से डिपेंड करता है कि डेफिनेटली एक जो पहले प्रोटीन सिंथेसिस में एक पहले जो अमाइनो एसिड था उसकी जगह एक डिफरेंट अमाइनो एसिड आ गया, एक नया अमाइनो एसिड आ गया ना, चेंज हो गया अमाइनो एसिड. तो डेफिनेटली वो अमाइनो एसिड जिस चीज को कोड करेगा वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो अफेक्ट होगी. अब प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्ट होगी या नहीं होगी, इट डिपेंड्स अपॉन which function was performing that amino acid. ये उस अमाइनो एसिड के फंक्शन पे डिपेंड करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के साथ क्या होगा. ओके, बेस सब्स्टिट्यूशन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू two mutations: missense mutation and nonsense mutation. We were at this slide. Okay, I'm sorry for the problem. कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में साथ साथ ही चलते हैं बच्चों. अच्छा, ये मैं इसकी बात करी थी कि आप लोगों को प्लीज अपनी बायोकेमिस्ट्री से डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और कोडॉन्स को प्लीज एक दफा पढ़ लो, क्योंकि ये तुम लोगों को इजी कर देंगे जेनेटिक्स को समझने के लिए. ओके,
But by definition, any sudden change in the base sequence of the hereditary material, genetic material, it is called mutation. This mutation can be harmful, it can be beneficial, or it can be neutral. Okay? Any sudden change in the base sequence of hereditary material is called mutation. Mutation की वजह से क्या होगा? Mutation results in different phenotype. Okay, the phenotype will be changed. These are the different types of the mutations. Mutation is further subdivided into three: base substitution या point mutation. मैंने कल भी कहा था कि please try to write down the different information in the form of the tables or flow charts. Okay. The second one is the frame shift mutation, and the third is the insertion of the DNA sequences. Insertion are the DNA sequences. These insertion of the DNA pieces, it carried through the transposons, are the insertion sequences. Okay. Now base substitution is further subdivided into missense, nonsense, and silent mutation. Okay. There is one example of nonsense, which is thalassemia. It is a blood disease in which the blood cells are regularly replaced. Frame shift mutation is further subdivided into deletion or insertion. Okay. First, we discuss the base substitution. One base is inserted or it is replaced in place of another base. And it usually happens at the time of the DNA replication. जब DNA replication हो रही है उस टाइम पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से जिस बेस ने आना था उसकी बजाय कोई और बेस वहां पे अटैच हो गई. ओके, ये इसमें रीजन कोई भी हो सकती है. मे बी द रीजन इन द एरर्स कम इन द DNA polymerase, which is the enzyme which carried the DNA replication, or any mutagen which has which alters the hydrogen bonding of the bases, especially those bases which are used as a template. The bases which are used as a template, उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आल्टर कर देगा कोई भी म्यूटाजेनिक एजेंट, जिसके रिजल्ट में रॉन्ग बेस इंसर्ट होगी. हमारा मेन आउटकम ये है कि रॉन्ग बेस इंसर्ट हो रही है. एक जो पहले रेगुलर बेस नॉर्मल बेस थी उसकी बजाय रॉन्ग बेस इंसर्ट हो रही है. ठीक है. इट इज ऑफ टू टाइप्स, मिस सेंस म्यूटेशन एंड नॉन सेंस म्यूटेशन. मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होगा? व्हेन द बेस सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट्स इन ए कोडॉन. कोडॉन जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को रीड करते हैं ना. कोडॉन के अकॉर्डिंगली ही अमाइनो एसिड आता है और बाइंड करता है और आगे आगे प्रोटीन सिंथेसिस चलती है. इसलिए व्हेन द बेस सब्स्टिट्यूशन इट रिजल्ट्स इन ए कोडॉन, तो different amino acid will be inserted. Whether this protein will be remain functional or not, it depends upon the function of the amino acid. I will explain in the diagram this the written material. The nonsense mutation, when the base substitution, it results in the terminal codon or stop codon. Do you know that now the terminal codon or stop codon will stop the synthesis of the protein. Prematurely the termination of the protein synthesis, translation stop हो जाएगी, प्रोटीन की synthesis stop हो जाएगी. जो प्रोटीन बनेगी वो prematurely वो stop हो जाएगी, function perform नहीं कर सकेगी. So destroy the protein functions at the end. Nonsense mutation destroy the protein functions. Here you can see in this picture this is the original DNA. Here different codons are mentioned. DNA bases: C, cytosine, adenine, thymine, G stands for guanine. These are different DNA bases. They are attached here. And the three bases, they form a code. I told you already, in the biochemistry, you know the codon and the stop codon. A codon is made up of three bases, DNA bases. Three bases. This base, it codes for the amino acid which is histidine. Okay, CAT, it is histidine is coding. Okay, and this protein will be synthesized.
If in this original DNA code for an amino acid sequence, any change in a base, only one base, here the C is replaced. Here A is replaced with the C. Adenine is replaced with the cytosine. अब कोड क्या हो गया? CAT से चेंज हो गया CCT. CCT code codes for the proline amino acid. It means देखो सिर्फ only one base के change होने से एक different code बन गया और ये code एक different amino acid के लिए है. CAT हिस्टीडीन के लिए था, CCT पेरोलीन के लिए है, तो उसकी जगह अब हिस्टीडीन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे पेरोलीन आके अटैच होगा. Incorrect amino acid which may produce a malfunctioning protein या protein function will be destroyed, कुछ भी हम कह सकते हैं. Here this is the example of the base substitution in a codon. Here are the different examples of the base substitution के types कि what are the missense and nonsense. This is the silent को हम बाद में डिस्कस करेंगे. Missense mutation. Missense mutation में क्या होगा? The change in the base it occurs in a codon. Change होने के बाद भी जो बना है वो एक और codon है. एक कोडॉन दूसरे कोडॉन में चेंज हो गया. यहाँ पे पहले GGA था जो कि ग्लाइसिन को कोड कर रहा था. GGA था जो ग्लाइसिन को कोड कर रहा था. अब उसका वन बेस चेंज हो गया. GGA की जगह वो बन गया AGA. Only one base of the DNA is changed, but एक different कोडॉन बन गया. अब वो बन गया AGA, which codes for the arginine. Okay. So different amino acid will be inserted. इस किस्म की चेंज को हम कहेंगे मिस सेंस म्यूटेशन कि मिस कर दिया उसने, मिस सेंस म्यूटेशन. जो होता है बिल्कुल ही हम कहते हैं नॉन सेंस है, जैसे मतलब कोई भी गलत हो जाए तो हम कहते हैं नॉन सेंस बिहेवियर है ये, जो बुरा बिहेवियर हो. ठीक है, तो इसी तरह नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या आएगा? चेंज इस तरह हुई है कि वो एक जो बेस चेंज हुई है उसने टर्मिनल कोडॉन बना दिया है. UAA is a stop codon, terminal codon. देखो अभी आगे 2 codons more हैं, लेकिन यहाँ पे stop codon आ गया. It means प्रोटीन की सिंथेसिस यहीं पे स्टॉप कर जाएगी, प्रीमेच्योर सिंथेसिस हो जाएगी प्रोटीन्स की और प्रोटीन के फंक्शन जो है वो अफेक्ट होगा. ठीक, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मिस सेंस एंड नॉन सेंस. यूजुअली ये म्यूटेशंस वाइवा में पूछ ली जाती हैं कि व्हाट आर द मिस सेंस और व्हाट आर द नॉन सेंस म्यूटेशंस. ओके. What are the silent mutations? Silent mutation is also a type of the base substitution. ठीक है, but it does not change an amino acid. It means इसमें base change तो हो रही है, लेकिन उसमें जो change है वो ऐसी change है कि कोई different amino acid इसकी जगह कोड नहीं हो रहा. Still have a same phenotypic effect. चेंज होने से पहले भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, वो कोडॉन या वो बेस पेयर्स जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो भी उनकी फिनोटाइप होगी, स्टिल दे हैव द सेम फिनोटाइपिक इफेक्ट. बस जस्ट दिस चेंज जो होगी ये साइलेंट रहेगी. ये फॉर एग्जांपल स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन द प्रोटीन सिंथेसिस. इट विल नॉट अफेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस कि प्रोटीन सिंथेसिस को माल फंक्शनिंग कर दे या उसको स्टॉप कर दे, ऐसा नहीं करेगा. या तो स्पीड अप कर देगी ये चेंज या स्लो डाउन कर देगी. Especially it affects the splicing process. I hope so you have studied the splicing in the biochemistry also. The second type is the frame shift mutation. Base substitution में क्या हो रहा था? एक बेस दूसरी बेस से रिप्लेस हो रही थी, बस कोई चीज ऐड या डिलीट नहीं हो रही थी. इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसका नेम ही शो करता है कि ये जो रीडिंग फ्रेम है, जो राइबोसोम्स पे रीडिंग फ्रेम है प्रोटीन्स का, ये उस फ्रेम को शिफ्ट कर देता है. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. डिलीशन और इंसर्शन ऑफ वन बेस पेयर और मोर बेस पेयर्स. ओके, इट विल रिजल्ट इन द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. अब रीडिंग फ्रेम सारे का सारा चेंज हो गया. जहां पे म्यूटेशन हुई, जिस स्टेप पे म्यूटेशन हुई, उससे आगे जो राइबोसोम्स पे रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो गया है. डाउनस्ट्रीम द चेंज अमाइनो एसिड, उससे आगे रॉन्ग अमाइनो एसिड इंसर्ट होंगे.
इट मींस लॉट ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस हो जाएगी और ये इनएक्टिवेट कर देगा प्रोटीन सिंथेसिस को। ओके, इस पिक्चर में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये देखो यहाँ पे आ गई। नॉर्मल जो था वो एलानीन था, एलानीन है, सेकंड वन ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन को कोड कर रहा है, थर्ड अमाइनो एसिड एलानीन फिर कोड हो रहा है, यहाँ पे भी वो एलानीन ही है। ठीक है, चेंज हुई है, इंसर्शन हुई है या डिलीशन हुई है, उसके बाद ये देखो ये सारा चेंज हो गया। दिस वन इज एन इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स हो गया है, रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया है और इनएक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक, this is a very good picture. In this picture you can easily explain this. You can write down or note down this picture. It very well explain the different mutations. This is the original DNA. Its code is UUA. Okay, it corresponds to the amino acid leucine. It means leucine का code है UUA. अगर इसमें UUA के अंदर कोई न्यू बेस इंसर्ट हो जाए, अभी हमने बात की डिलीशन या इंसर्शन आएगी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, इसमें क्या हुआ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुई, इसके अंदर जी गुआनिन इंसर्ट हो गया है। ओके, नाउ इट कोड फॉर अ डिफरेंट अमाइनो एसिड। दिस इज UUA is changed into CUA. C and U, it is, will form the silent mutation. Still it, because still this this codon, it codes for the leucine. UUA also code for the leucine. CUA also code for the leucine. So both changes, they code for the amino acid leucine. It is a silent mutation. In this mutation, the first one, the U is replaced with a G. It will be a missense mutation because now it will code for a different valine amino acid. And if it will become UAA, which is a stop codon, it will result into nonsense mutation. Okay, you have understand it? दिस इज एक फनी रिप्रेजेंटेशन है इसी चेंजेस की। देखो द नॉर्मल जो नॉर्मल था ना, वो था बीस्ट, BEAST, ये नॉर्मल था उसका सारा, उसका हम कह सकते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल का कोड जो है वो बीस्ट है, उसके ये स्पेलिंग है। अगर हम इसके अंदर एक इंसर्शन करेंगे, ठीक है, हम इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से देखो वो बन गया फीस्ट, सब्स्टिट्यूशन है, एक बेस सब्स्टिट्यूशन है। ओके, बी की जगह एफ लग गया, एक रिप्लेस होगा, आई एम सॉरी, इसकी जगह एक रिप्लेस हो गया, इंसर्शन नहीं हुई, इसकी जगह एक रिप्लेस हो गई है। द फर्स्ट कोड बी इज रिप्लेस विद द एफ, इट विल बिकम अ डिफरेंट थिंग, फीस्ट। ओके, इसका फिनोटाइप बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। इसकी फिनोटाइप ये थी, बीस था, फीस्ट इसकी फिनोटाइप बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब इसके अंदर उन्होंने एक किया इंसर्शन, ठीक है, ओरिजिनल के अंदर 20 था, इसके स्पेलिंग में एक जो बेस है वो इंसर्ट हो गई है, वो आर इंसर्ट हुआ है, तो ये बन गया 20 से ब्रेस्ट बन गया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन विल शो द इंसर्शन विच कम्स इन द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंसर्शन या डिलीशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आएगा और इसकी भी डेफिनेटली, इसकी भी फिनोटाइप ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, हियर इसमें क्या हो रहा है, बीस्ट में से ए को मिस कर दिया है, तो ये बन गया बेस्ट, मतलब वेरी गुड, ये वन बेस पेयर डिलीट हुई है, इसकी फिनोटाइप बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। ओके, इसमें डिलीशन हो रही है। और अगर इसमें ही सिर्फ चेंज कोई नहीं करना, उनके अरेंजमेंट को चेंज करना है, एस की जगह टी आ गया, टी की जगह एस आ गया, तो ये इन्वर्जन आ गई। अभी हम देखेंगे इन्वर्जन, तो ये बन गया बीट्स, म्यूजिक की जो बीट्स है वो बन गया। तो सारी ऑल ओनली वन बेस के चेंज होने से सारी की सारी फिनोटाइप चेंज हो गई है। इस स्लाइड तक अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। ओके, नाउ द थर्ड वन म्यूटेशन इज द, जो हमने कहा था इंसर्शन ऑफ डीएनए पीसेस, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोसन्स और इंसर्शन सीक्वेंसेस भी। अच्छा, इरम जावेद, प्लीज आप मुझे बताओ व्हाट आर द ट्रांसपोसन्स, और यू कैन से दैट व्हाट इज द अदर नेम फॉर द ट्रांसपोसन्स। हेलो, आर यू देयर इरम? Ma'am, इनको insertion sequences भी Okay, here is a boy, Sayyid Sajjad.
आप चले बता दें कि व्हाट आर द ट्रांसपोसन्स और मैम व्हाट इज इंसर्शन द अदर सीक्वेंस, नेम फॉर द ट्रांसपोसन्स। हमने इंसर्शन इसको सीक्वेंसेस। सेकंड चैप्टर में मैंने तुम लोगों को बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में। मैम इंसर्शन सीक्वेंसेस। सजाद हियर। यस मैम। अच्छा, ओके सैयद सजाद, आप मुझे बताओगे ट्रांसपोसन्स क्या होते हैं? मैम जब पीस ऑफ डीएनए जो इंसर्ट, अगर एक डीएनए के अंदर से पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट किया जाए तो वो ट्रांसपोर्शंस होते हैं, या इंसर्शन सीक्वेंसेस भी कहते हैं। ये तो आप इधर से बता रहे हो ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल सेकंड चैप्टर से। पहले आप मुझे ये बताओ, आपने बुक ले ली? यस मैम। बुक ले ली है तो फिर आप उसको खोलो और उसको लेक्चर के बाद देखना। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में ट्रांसपोसन्स मेंशन है, इसका सेकंड ठीक। नेम था। मैं अब किसी और स्टूडेंट से पूछती हूँ, ठीक है? आप को मैं म्यूट कर रही हूँ। वेयर इज इरम? हेलो इरम। जी इरम, क्या होते हैं ट्रांसपोसन्स? मेरा ख्याल है इरम नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। मैम ये अनम्यूट नहीं हो रहा था मैम। हम ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोसोम्स जो है वो एक डीएनए से कोई सीक्वेंस उठाकर दूसरे में पुट करते हैं, तो इसको हम लोग जंपिंग जीन्स भी कहते हैं या इंसर्शन सीक्वेंस। यस, इनको हम जंपिंग जीन्स कहते हैं। और जंपिंग जीन्स से हमें इजीली ये पता लग जाता है कि इट मींस दे वो बहुत क्विकली ट्रांसफर होते हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, डीएनए में। ठीक है, ओके गुड इरम, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। ठीक, थैंक यू। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोसन्स की वजह से जो सजाद ने जो बताया था वो बच्चे, वो ये यहाँ की बात है ना। एक्चुअली द ट्रांसपोसन्स या इंसर्शन सीक्वेंसेस की वजह से जो म्यूटेशन हो रही है, हम यहाँ पे वो बात करेंगे। लेकिन हमें बैकग्राउंड नॉलेज ट्रांसपोसन्स का होगा तो ही हम करेंगे ना। डेफिनेटली ट्रांसपोसन्स जो होती है वो जंप कर देते हैं एक पीस ऑफ डीएनए को, ठीक है, पूरे का पूरे जेनेटिक मटेरियल की बात नहीं कर रहे, एक पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर देंगे किसी और जगह पे, जिसकी वजह से वो चेंज आएगी। इट प्रोड्यूस द प्रोफाउंड चेंजेस इन द इंसर्टेड जीन्स, या जहां पे वो जाके इंसर्ट कर रहे हैं उन जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, या उसके साथ एडजेसेंट जो जीन्स होंगे उनको चेंज कर देंगे। ठीक है, ये ट्रांसपोसन्स या इंसर्शन सीक्वेंसेस की वजह से इस टाइप की म्यूटेशंस होंगी। यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मेरे से पूछ लो, ठीक है, क्योंकि आगे हम ट्रांसफर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। ये सारा था म्यूटेशन के बारे में, जो एक बेसिक सी टाइप्स आपकी बुक में मेंशन है, कौन कौन सी टाइप की म्यूटेशन होती है। आगे वो बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ डीएनए की, कि डीएनए को हमने ट्रांसफर करना है, वो किस किस तरीके से ट्रांसफर होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? ओके, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, अगर मेरे समझाने की किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हो इजीली। ट्रांसफर ऑफ डीएनए, डीएनए इसको है कि डीएनए ट्रांसफर कैसे होगा। डीएनए टू मेथड से ट्रांसफर होता है। नंबर वन इज द विद इन द बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर ही जो जेनेटिक मटेरियल है उसी में डीएनए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है विद इन द बैक्टीरियल सेल, इसको कहेंगे। नंबर टू, इसमें यूजली ये जो अभी हम बात कर रहे थे प्लाज्मिड्स जैसे हमने बात की थी, या हम बात कर रहे थे ट्रांसपोसन्स की, वो इस तरीके से इस मेथड से ट्रांसफर करेंगे डीएनए को। देयर इज अनदर मेथड, द ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल। ओके, इट मींस फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ठीक, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल। Transfer of DNA between the bacterial cells, it take place through three main methods, three main processes. उन processes से DNA transfer होता है। Number one is the conjugation.
Number 2 is the transduction and number 3 is transformation. आप इस चैप्टर में जो ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स है, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, ये दोनों आपके एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एससीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, या आप लोगों से वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉन्जुगेशन, व्हाट इज ट्रांसडक्शन. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स. नंबर 1 इज कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन का आउटकम क्या होगा, कॉन्जुगेशन प्रोसेस के रिजल्ट में क्या होगा. द जीन्स फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, they are transferred mainly from one bacteria to another bacteria through the process of conjugation. आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में भी थोड़ा सा एक दो तीन जगह पे कॉन्जुगेशन का वर्ड टर्म ये सुनी थी वहां पे. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि वो कॉन्जुगेशन होती कैसे है. कॉन्जुगेशन में the genes for the antibiotic resistance, they are transferred from one bacteria to another bacteria. ठीक है, मेन इसका जो फंक्शन. नंबर 2 है ट्रांसडक्शन. द मैनी डिफरेंट एक्सोटॉक्सिन्स, द जीन्स फॉर द एक्सोटॉक्सिन्स which are specially coded by the bacteriophage. बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज. ठीक है, those exotoxins which are encoded by the bacteriophage, उनके जीन्स स्पेशली ट्रांसफर होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन. ओके, एंड थर्ड वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज आल्सो द ट्रांसफर ऑफ डीएनए. ओके, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन. व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेटिंग ऑफ टू बैक्टीरियल सेल्स. ओके, conjugation is a mating of two bacterial cells and DNA is transferred from the donor to the recipient through the conjugation tube. It is also called the mating bridge. इस conjugation tube को हम mating bridge भी कहते हैं. This is the proper definition of conjugation. Mating of two bacterial cells in which the DNA is transferred from the donor to the recipient through the conjugation tube. अब अगर आप रिकॉल करो अपना सेकंड चैप्टर के नॉलेज को, वहां पे हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे. उन स्ट्रक्चर्स में जैसे कल बात की थी कि कुछ स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल होते हैं. उनमें एक तो कैप्सूल था, एक ग्लाइकोकेलेक्स था, एक और स्ट्रक्चर भी था जो कि आउटसाइड द सेल वॉल होता है. ओके, वो था पायलाई था, अगर किसी को याद हो वो पायलाई था. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में इधर पायलाई का रोल आएगा. ठीक, दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इज कंट्रोल्ड बाय द एफ या फर्टिलिटी प्लाज्मिड हम कहते हैं. प्लाज्मिड्स हमने देखा था, दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीसीज ऑफ डीएनए. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक सेल के अंदर ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीसीज ऑफ डीएनए होते हैं. ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स थे. उसमें ये है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, इसको हम कहते हैं एफ फैक्टर. दिस इज मेनली कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन. एक्चुअली दिस प्लाज्मिड विल कैरी द जीन्स फॉर ऑल दोज प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन. उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो है पाइलिन प्रोटीन, जो कि बनाएगी सेक्स पाइलस. सेक्स पाइलस का वर्ड हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा सा सिर्फ जिक्र था प्लाज्मिड्स में. रिकॉल योर नॉलेज, सेक्स पाइलस का वहां पे जिक्र था. ठीक है, ओनली द फर्टिलिटी प्लाज्मिड आर एफ फैक्टर, इट विल कोड फॉर दीज जीन्स. सेक्स पाइलस, दिस सेक्स पाइलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इज एक्चुअली थ्रू दिस सेक्स पाइलस द डीएनए इज ट्रांसफर्ड. इसी को हम कॉन्जुगेशन ट्यूब या मेटिंग ब्रिज भी कहते हैं. Okay, the next yes, in this slide it is shown the whole process of conjugation. Okay, I will explain it. Please be attentive. In this picture,
Here the first, this is a donor bacterial cell. Donor bacterial cell, it is a male donor bacterial cell. Okay, male donor bacterial cell. It is F positive. What is meaning of F positive? It means if it has fertility plasmid या F factor. वो बैक्टीरियल सेल जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड होगा उसको हम F पॉजिटिव कहेंगे. वो बैक्टीरियल सेल जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं होगा उसको हम F नेगेटिव कहते हैं. एंड यूजुअली जो मेल है, जो मेल बैक्टीरिया है, ठीक है, डोनर है, वो F पॉजिटिव है. जो फीमेल रिसिपिएंट है बैक्टीरिया, female recipient bacteria, this one is female recipient bacteria, it is F negative. It does not have the fertility plasmid F factor. Okay, one thing, the male donor F positive cell, it has this gray tube na, conjugation tube या mating bridge या sex pilus. इसके पास ये sex pilus है. Okay, they will come in contact. This male donor and this is female recipient. They will come in contact through this conjugation tube, या mating bridge. Through the reeling in of this sex pilus, they will comes in contact. After becoming in contact, there will be enzymatic cleavage of the fertility plasmid. जो DNA है, उसकी enzymatic cleavage हो जाएगी. Single strand of the DNA will be transferred from the donor male to the recipient female. Single strand of DNA will be transferred only from this plasmid या F fertility plasmid का single strand सब transfer होगा. Through this mating bridge, through this sex pilus, it will be transferred into the recipient. Now the recipient has a single strand of DNA. ठीक है? This process, this whole process will be completed when the complementary strands will be synthesized in both the donor and the recipient. अब दोनों के पास एक एक strand हो गया था ना दरअसल. अब दोनों अपने complementary strand को synthesize कर लेंगे. जो मेल डोनर था उसके पास भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होके वह सर्कुलाइज कर देगा अपने डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दोबारा से बन जाएगा. जो रिसिपिएंट है उसके पास सिंगल स्ट्रैंड आया है, लेकिन उसने फिर सिंगल स्ट्रैंड के आने के बाद अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर लिया और डबल स्ट्रैंडेड बन गया. नाउ बोथ आर एफ पॉजिटिव. दिस वाज मेल डोनर, दिस वाज ऑलरेडी एफ पॉजिटिव. Now this recipient female has become the male donor, male bacterium, because it is now F positive. It has the fertility plasmid and it has this sex pilus, your conjugation tube. I hope you all have understand till now. The rest of the genetics chapter we will discuss it inshallah in the next lecture, which maybe in the next week, I think so. Okay. I will talk to medical education department. Inshallah, they will update your timetable and you will understand which lecture will be coming next. Okay, this is also bacterial conjugation. We will discuss it in the next time. If any one of you want to ask it or repeat anything, I can repeat. There are still 2 minutes. The rest of the slides we will discuss it in the next lecture.